کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء ڈٹائی سے کیسے کہتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ بلاول بھٹو کا کراچی کے تاجروں کے زہرانے سے خطاب، کہا سندھ کا کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں، ہمارا تو وفاق پر یہ اعتماد ہی ختم ہو چکا کہ وہ کبھی پوری بجلی دیں گے۔ شکایت ہے تو مجھ سے کریں، کہیں اور جا کر چغلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کہیں اور جانا اور چغلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے نہ بھٹا مانگا ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ ہم اتنا برے نہیں ہیں، ہم چلے دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی۔ میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ میں واپس سندھ آ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے؟ تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے۔ ایسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جائے۔ متنازع پی کے ایکٹ 2025 سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا احتجاج، ہنگامہ آرائی، شور شرابہ۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا پی کے ایکٹ میں ترمیم کا مقصد ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے۔ متنازع پی کے ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا بھی احتجاج، پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ اہم خبر، متنازع پی کے ایکٹ 2025 سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن اور میڈیا تنظیموں کی سخت مخالفت کے باوجود سینٹ نے بھی متنازع پیکا ایکٹ کی منظوری دے دی۔ ہاں والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام سے متعلق متنازع الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 کی تحریک وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پیش کی۔ اپوزیشن اور صحافیوں نے متنازع بل کی مخالفت کی اور احتجاج کیا۔ اس بل کا جو انٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خاص فوکس بیسیکلی وہ ہے۔ اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا جلد بازی میں کیا گیا۔ قانون روز نہیں بنتے، نہ بننے چاہیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع پیکا ایکٹ کا دفاع کیا۔ نئے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور یہ دونوں جگہوں سے قومی اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انہیں پاس کیا ہے اور یونانیمسلی پاس کیا ہے۔ آپ بغیر پڑھے بغیر بات کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو پیکا ایکٹ کے اوپر امینڈمنٹس آئی نہیں۔ اجلاس میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی شکوار سینٹ سے منظوری کا عمل شروع ہوا تو صحافیوں نے ایک بار پھر پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ پی آر اے کی جانب سے متنازع پیکا ترمیمی بل کالا قانون نامنظور کے نعرے لگائے۔ اس سے پہلے جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی مزید ترامیم کی تحریک بھی مسترد کر دی گئی۔ سینٹ میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظوری کے لیے پیش کرنے کی تحریک وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن نے ایوان میں احتجاج کیا۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان اور ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے بھی بل کی مخالفت کی۔ نئی مصغر، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ متنازع پی کے ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے کی کال پر صحافتی تنظیموں کا ملک گیر احتجاج۔ صحافیوں نے متنازع پی کے ایکٹ کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیا۔ کراچی اور لاہور کے پریس کلب کے باہر صحافیوں کا مظاہرہ، نعرے بازی۔ اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی پریس کلب کے سامنے صحافی سراپا احتجاج۔ اسلام آباد میں مظاہرین ڈی چوک کے گیٹ پر پہنچے، دھرنا دے دیا۔ پولیس نے واٹر کینن بھی منگوا لی۔ سول سوسائٹی، لیبر، وکلا تنظیموں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی احتجاج میں شرکت۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے
से सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफती तंजीमों का मुल्की एहतजाज। सहाफियों ने मुतनाज़े पीका एक्ट को आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दिया। कराची और लाहौर के प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का मुजाहिरा, नारेबाजी। इस्लामाबाद और कोयटा में भी प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन डी चौक के गेट पर पहुंचे, धरना दे दिया। पुलिस ने वाटर कैनन भी मंगवा लिया। सिविल सोसाइटी, लेबर, वकला तंजीमों और सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की एहतजाज में शिरकत। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पीके एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ है। हमारी कोशिश है कि पीका बिल में एक काउंसिल बनाई जाए। मुझे कहा गया था कि हम स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशंस जो हैं शराकत दारी के साथ होगा, वो नहीं हुआ। वाज़ेह है कि आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, 2 दिन का काम होता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेगोशिएशन होती है, आप कुछ एक्सेप्ट करें, हम कुछ करें। मैं तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ कि अगर वो नहीं मिल रहे तो हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये बिल है, इस पर आज अमेंडमेंट्स लाए, हम कल इस पर और ला सकते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं हुकूमत PTI मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात से इनकार। स्पीकर अयाज सादिक, असद कैसर और उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। PTI के इनकार के बाद मुज़ाकराती कमेटी इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। PTI की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की कमेटी अरकान इजलास में शरीक हुए, मगर PTI या अपोजिशन की जानिब से कोई शरीक ना हुआ। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। पार्लिमानी जो जमहूरी सिस्टम है, ये तो डायलॉग से ही आगे चलता है। जो रास्ता वो सड़क से निकालना चाहते हैं ना, जो वो 26 नवंबर को चाहते थे, वो ना निकला, ना आइंदा निकलेगा, उससे मजीद नुकसान होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम समझते थे मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर वो आ जाते तो हम तहरीरी जवाब उनको भी शेयर करते और स्पीकर साहब को पहले पेश करते, फिर जैसे उन्होंने किया था फिर उसको पढ़ते और उनकी तरह पहले लीक ना करके आते। ये उनका आखिरी फैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म कर दिया है। PTI ज़राए ने वाज़े किया है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, PTI मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देंगे तो मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि इसी का रोल काबिल तारीफ है। असल सवाल ये है कि मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। अनाउंस कर सकते हैं कि जी हम हुकूमत के तौर पे फॉर्मली हम ये ऐलान करते हैं कि हम ये 2 कमीशन बनाएंगे, हम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करेंगे। ये बात है, ये अपना अंदिया दे दें कि इन्होंने इनकी इंटेंशन है, तो फिर ऑब्वियसली खान साहब इस पे उन्होंने तो यही फैसला यही था कि जी ये मज़ाकरात हो, लेकिन बामकसद मज़ाकरात हो। ये नहीं कि एक दिखावे के लिए एक और उसमें ना कोई फैसला हो न उसमें आगे बढ़ सके। PTI और JUI के दरमियान राब्ते के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी मेंबर्स असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा आपस में राब्ता करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। हमने स्टैंडिंग कमेटी में PK एक्ट के खिलाफ वोट दिया। हम शमाली कोरिया और म्यांमार मॉडल की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी और उनको हमने तीसरी नशिस्त में मवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरामीम कर रहे हैं। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं।
फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, मैंने कबल अज वक्त बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड के बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। आज ही की तारीख में ट्रम्प टीम के हालिया दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। मैंने कहा था PTI को आखिर में उनके ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होगी, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम करती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। 3 और 3 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी। 2,050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। मरियम नवाज ने कहा कि सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का PTI की सूबाई सदारत से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया है, जिसे इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मंजूर किया। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर PTI की सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा उनका मंजूर हो चुका और बैरिस्टर गौहर ने मंजूर किया। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वेलकम बैक। अमेरिका का आला सतह का इन्वेस्टमेंट वफ्द 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत एक्सिस हेज फंड के मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जैनेट रिबीच कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत। नई अमेरिकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही इन्वेस्टमेंट वफ्द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमेरिकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफ़त में रुकावट बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इक़दाम की मुखालफत करेगी जिससे सहाफ़ी बरादरी को नुकसान पहुँचे। पीपल्स पार्टी पीक एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम, सियासी ताकत वापस हासिल करेगी। नून लीग इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज ना करे। नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद करना चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत अगले महीने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार है। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने पर गौर किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ऑरेंज लाइन बस सर्विस का ऑपरेशन भी हुकूमत सिंध के हवाले करने पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मंसूबे के मुआहदे में इस्लाहात के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर करने की हिदायत करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस अपग्रेड भी करेगी। मिनिस्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा है, मरीम नवाज की हिदायत पर सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नसीर ने सिविल सर्विसेज अकेडमी वाल्टन का दौरा किया। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कैंप में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब में ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा, कोई अकेला बंदा मुल्क को दुरुस्त नहीं कर सकता। आप लोग मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ब्यूरोक्रेट्स को जब मुल्क की खिदमत का मौका दिया जाए वो हक और सच का साथ दें। अपने ज़मीर को हमेशा हक को सदाकत के साथ रखें। ख्वाजा इमरान नसीर ने अकेडमी में गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। ऑटोमेटिक क्लॉथ वॉशिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए डबल हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। हेलमेट पहनने का इत्तलाक मर्द और ख्वातीन दोनों पर होगा। आगाही मुहिम के बाद खिलाफ वर्जी पर चालान शुरू हो जाएंगे। तफसीलात साकिब सलीम बट से। और ये हो जाएं तैयार। शहर में मोटरसाइकिल चलानी है तो दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम करार, वरना जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। लाहौर में डबल हेलमेट से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाई जा रही है। CTO अतर वहीद का कहना है, हेलमेट ना पहनने वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। खातून एक हेलमेट पहन जाए तो मेरा ख्याल उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी सेफ्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। हमें पीछे जाने के बजाय हमें एक स्टेप आगे जाना है बेसिकली।
शहरियों ने डबल हेलमेट पहनने की पाबंदी पर मिला जुला रद्द अमल दिया। कॉलेज वाले तो अलाउ नहीं ना करेंगे इनको हेलमेट के, आप अंदर लेकर आए। मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, मतलब मुझे सांस का मसला नहीं होता इसमें, मैं पहन लूँगा। हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा हेक्टिक है कि हमने उसको कैरी करना और डबल दोनों नहीं करना है। मम्मा भी लेंगी, फिर मैं भी लूँगी। औरतों के भी तो हकूक समझे ना, कि मतलब वो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करके ऊपर हेलमेट पहन के गई हूँ, अच्छा लगता है ये। ट्रैफिक पुलिस का कहना है इस इक़दाम का मकसद शहरियों को हेड इंजरी से बचाना है। पहले मरहले में खवातीन को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी पर इनका भी चालान किया जाएगा। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।